Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9, and it's been an incredible season so far. A lot of great games that have gone down throughout this HBL PSL 9. With me in the Pavilion, I'm joined by four former captains of Pakistan, four outstanding cricketing minds that have been in this journey right from the beginning. I have the privilege of sharing this space with them. First up, I've got Azhar Ali. Assalamu alaikum and welcome, Azhar. Wa alaikum salam. Thank you so much. Next up, I've got Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Wa alaikum assalam. With that, I've got Captain Misbah ul Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. Ji, wa alaikum assalam. And finally, the Sultan of Swinging and the Swinging Sultan, got Wasim Akram. Assalamu alaikum and welcome, Wasim. Assalamu alaikum ji. Good afternoon, good evening, everyone. Yep, and with that, it's been incredible. What a game of cricket we saw yesterday, Wasim. There was a game yesterday. Yes, jago bhai, jago. No, itni T20 hoti hai. You don't remember what happened yesterday, kind of That's situation nowadays. There's so many leagues, so many series, so many things are happening. Good point. So I'll refresh your memory what happened yesterday. Yes, आइए जरा नजर डाल लेते हैं मैच समरी के ऊपर. This is how it went down yesterday. It was Peshawar Zalmi clashing with Islamabad United. Islamabad United ने कल टॉस हारा और उनको दावत दी गई कि वो बैटिंग करें बाबर आजम की तरफ से. And this is how it went down for Islamabad United. शादाब ने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली. 196 for 4 था अपने 20 ओवरों में. शादाब playing a captain's innings after a early start dismissals by great bowling that we saw from the young Saim Ayub. उसके बाद जनाब शादाब ने एक कैप्टन्स नॉक खेला. सलमान देर contributing 37 of 25. Azam Khan with that Azam power 29 of 14 and Cox 26 of 20. Saim Ayub bowled really well. 2 overs, picked up 2 wickets for 15. Wood 1 for 34 in his 4 and Irshad 1 for 37 in his 4. Peshawar Zalmi in response were bundled. Well, they only scored 167 for 9 and it was Amir Jamal who put up a great resistance there. 87 of 49 deliveries. Walter 33 of 29. Cadmore 12 of 14. Yaqub 9 of 7. Shadab picked up 3 wickets yesterday for 41 runs in his 4 overs. Hanan picked up 2 for 25 in his 4. Rais 2 for 28 in his 4. And Naseem Shah, who bowled brilliantly, 1 for 26 in his 4 overs. Islamabad United won this one by 29 runs and they are looking good now. जरा पॉइंट टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं. आज पॉइंट टेबल की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है इस वक्त. याद रहे कि मुल्तान सुल्तान्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए. 7 मैचेस में से 6 जीते हैं, 1 हारा है. 12 पॉइंट्स के साथ राइट ऑन टॉप. ग्लैडिएटर्स राइट बिहाइंड देम, 6 खेले हैं, 4 हारे, 4 जीते, 1 हारे और 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे. नाउ Islamabad United have climbed up this ladder and have come to the 3rd position with 7 games, 3 won, 3 lost and 7 points. एक बारिश का उनका पॉइंट जो है यहाँ पे कम है. Peshawar Zalmi there with 7 games, 3 wins and 3 losses, also with 7 points. मगर क्योंकि उनका नेट रन रेट मनफी 4.80 है, इसलिए Islamabad United is ahead of them. Karachi Kings now, they're under pressure. They've played 6 games and they only have 4 points there. And Lahore Qalandars right at the bottom, the defending champions, 2-time champions back to back, there with that one rain point that they got. That remember that the top 4 teams will play the playoffs. So ये सूरत हाल है and that was the reminder, Wasim. Now you remember. Yeah, thank you very much. Excellent reminder. वो जब आप स्कोर कार्ड पढ़ रहे थे तो उससे पहले मैंने थोड़े पॉइंट्स पे देखा कि पेशावर जो 3 के 3 मैच जीती है, बैटिंग करके पहले जीती है. जी. और इस मैच में आके उन्होंने चलो स्ट्रेटजी चेंज की, मे बी के चेस करेंगे, धुंध वो ड्यू पड़ेगी एंड देन 3 चेंजेस भी कर दी टीम में. विनिंग कॉम्बिनेशन एक होता है ना, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन जाता है अनलेस अंटिल देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द पिच, then you change 3 changes. Like injuries भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. So I think they kind of put pressure on themselves yesterday and they were 18 for 5 when they were chasing 196 plus. Yeah. The worst power play ever in the history of PSL. Of course, runouts as well. I have a very interesting stat. I'll talk about it later about Babar. He's the most player involved in runouts in these जितनी PSL अभी तक हुई है. अच्छा, HBL PSL लॉन्ग की उनकी हिस्ट्री है. या 20 में वो है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, 8 दफा हुआ है, 12 दफा कराया है. ओपनरों को ज्यादा मसला लग रहा है. ओपनरों को ज्यादा मसला लग रहा है. अच्छा, ये दो ओपनर उधर से बोले ओपनर. आई एम द लास्ट गाय हु टॉक अबाउट रनआउट्स. आई थिंक मेरा भी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर चुपके से देखा जाए तो. अगर चुपके से चलेंगे, चुपके से जो है वो ये आ गया. बैटर्स इन्वॉल्वड इन मोस्ट रनआउट्स इन HBL PSL हिस्ट्री. बाबर आजम जो है
हैं वो टॉप पे हैं। उन्होंने 20 दफ़ा ये रन आउट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, जिसमें से अपने आप को उन्होंने 8 दफ़ा रन आउट करवाया है और अपने पार्टनर को 12 दफ़ा कराया है। इमाद वसीम दूसरे नंबर पे 14 रन आउट्स में टोटल शामिल है, 5 दफ़ा अपने आप को, 9 दफ़ा अपने पार्टनर को। शोएब मलिक ने भी 14 दफ़ा ये कारनामा अंजाम दिया है। 6 एक भी फॉरेन प्लेयर नहीं है भाई, ये है वैसे। ये देख रहा हूँ सरफराज अहमद 13 दफ़ा इन्वॉल्व रहे हैं, 4 दफ़ा अपने आप को, 9 दफ़ा अपने साथ अपने पार्टनर को। और सुहेल तनवीर 11 दफ़ा, 5 दफ़ा अपने आप को और 6 दफ़ा। चलो इमाद और सुहेल तनवीर आई कैन अंडरस्टैंड, दोनों के गोडे खराब थे खेलने के दौरान, और बाकी तीनों का क्या एक्सक्यूज है। सैफी देखें बड़ा स्मार्टली 4 दफ़ा खुद हुआ, 9 दफ़ा दूसरे बंदे को कराया। आई नो वो अपना बचा जाता सब छोड़ दें, आप हफीज यार को एक बात नोट करें। देखें, हफीज किस तरह यूं करके इधर-उधर देख इसमें मैं नहीं हूँ, आप सोचें ये मैं नहीं हूँ। बट डज दिस इसमें अफेक्ट, पॉजिटिव देखें ना आप, लेकिन कुर्बानी ऐसी देने हमेशा। बट डज दिस अफेक्ट यू एज अ बैट्समैन जब ये ऐसा कोई स्टैट सामने आता है व्हाइल यू वाचिंग टीवी एंड यू काइंड ऑफ नेक्स्ट इन, और इट डजंट मैटर? एक चीज जाहिर नहीं। होती है इससे कि तुसी अंदर जड़ा ना थोड़ा जिहा देर ना उड़ते हो। ये जरूर जेन्युइन बात है। फीस भाई साथ बैठे मैं सामने करूंगा, लेकिन जब भी फीस भाई बैटिंग कर रहे थे ये जरूर मिसबा भाई मैं हम जरूर डिस्कस करते थे ये चीज़ कि फीस भाई के साथ रन किस तरीके से भागना है। क्या देयर वाज अ प्लान। कुछ होना कह रहे हैं तो मैं ना नहीं ना कर सकता। ओके, क्या प्लान क्या होता था? ये प्लान वसीम ये ये होता था पूछने की कि बात नहीं है असल में। प्लान क्या, स्ट्रेटजी क्या होती थी? देख के रहना फीस तो ना रहना। I didn't Hafiz, that's really देखो ये दो मेरे साथी हैं, मेरे साथ खेले हैं, अगर वो कह रहे हैं तो बात कुछ सच्ची होगी। कुछ तो सच है, बिल्कुल तो सच होगा। बिल्कुल। ये वही बात है जैसे वो फखर आ गया कैच के बीच में, उन्हें कहा जी मेरी मर्जी, उन्हें कहा मेरे दिल चाहिए सी गल। हफीज है यार, फखर कम से कम तू कैच लेने आ रहा है तो कॉल तो कर देना। फखर कहता है मैंने की थी हफीज भाई। हफीज ने कहा कितने की थी तू, तेरी कहता आवाज? दिल च। कहता मैं दिल च की थी। उन्होंने भी मेरे से पै जाए थे, मैं की कह सकना, इन्हें मर्जी है। That's hilarious. That's hilarious. वो शोएब मलिक ने भी तो हमें बताया था कैच पकड़ते वक्त वो सही सही जगह में फूल बनाया था। उन्होंने फूल बनाया था, कहते मैं फूलते बनाया सी। कहते मुझे क्या पता। वो इंटरेस्टिंग, ये अच्छा दिल की कॉल, दिल की आवाज, दिल की मैं भी आवाज। गयाना में बैटिंग कर रहा था एक दफा टेस्ट मैच पे। हमारा एक ऑलराउंडर, बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर, 70 में बैटिंग कर रहे थे, इनजी 100 करके आउट हुआ था। सो एज यूजुअल मैं बैटिंग करने गया, नवा गेंद 80 ओवर हो गए, स्ट्रेट अवे नवा गेंद लेता है। बॉल्स तो हैम्बो थे, तो वो बैट्समैन ने मुझे कहा आगे से पाइन, मैं 3 पाइन कॉलिंग नहीं सा कर रहे, रनिंग दी। मैं कहा हैंग ऑन अ मिनट, व्हाट? हाँ असि कॉलिंग नहीं सा कर रहे, मैं कहा नासकी भी रहे पानी इशारे कर रहे सा। नहीं करे। मैं कहा look I can't do that buddy, you got to speak, you got to shout running between the yes or wicket, no. yes or no. But he said हमने 1.5 दिन ऐसे ही बैटिंग की है, and they did That's incredible. in their defense. But I have to say, and you'll be the best person to tell us this. I believe I'm told that Desmond Haynes and Gordon Greenidge would not call. They just had that chemistry between them. You'd hardly hear them call each other out. नहीं, Gordon used to shout a lot. These Really? guys were professionals. These guys were the best opening pair of bowled in the Amazing, weren't history they? of the game. I mean, unfortunately, आजकल की generation को उनका पता नहीं है. Yeah. Apart from their cricketing skills, their abilities, they were supremely fit human beings. You know, वो chiseled body, six pack, ये proper West Indian kind of hard, and physically running between the wicket was incredible. They were very good fielders too. I mean, उनसे डर लगता था, you know, उस दौर की West Indies team से. Yeah, they were काली आंधी, ऐसी तो नहीं नाम पड़ा था उनका। लेकिन जो जिन दोनों की बात कर रहे हैं, मेरा सिर्फ मैं उनके साथ खेला नहीं, उनके साथ मैंने कुछ टाइम गुजारा जब मैं वेस्ट इंडीज़ में था। आप जितने भी इन ग्रेट्स के साथ बात करते हैं ना, वो जो एटीट्यूड कैरी करते हैं ना, जो रीज़न थी उनकी खेलने की, वो बड़ी स्ट्रांग थी। वो शो ऑफ नहीं थी, वो परफॉर्मेंस थी। और उनका वो जो रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, वो जो एक पैशन था ना, लाइक दैट इज़ इंस्पायरिंग। जब आप उनके साथ बात करते हैं तो वो अपनी और अपने साथ जो उनकी ग्रेट टीम थी, जो ग्रेट वेस्ट इंडीज़ टीम थी, जब उनके करैक्टर्स की बात करते हैं ना, दैट इज़ समथिंग टू लर्न। कि आपके स्किल्स चाहे छोटे हों, स्किल्स अबाउट टैलेंट जो जिसको हम सब कुछ समझते हैं, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, व्हाट यू वांट टू गेन, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू रिप्रेजेंट, व्हाट फॉर यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। वो जो रीजन थी ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। 86 में 5 वनडे के लिए वेस्ट इंडीज थी पाकिस्तान आई, एंड mid-80s में दे वर अनबीटेबल, दे वर लाइक माइटी ऑस्ट्रेलियंस दिस डे एंड एज। एंड 5 वनडे थे, डिफरेंट सिटीज, आई थिंक लास्ट कराची में था, 2 ईच। और उस मैं 80 से 85 में पाकिस्तान ज्वाइन किया, तो मैं एज ए यंग किड सोने से पहले दुआ करता था कि इनके हम किस तरह करीब पहुंच जाएं, फॉरगेट विनिंग, राइट कि क्लोज मैच हो जाए।
वो आई थिंक वो इमरान भाई का एटीट्यूड, जावेद भाई का एटीट्यूड, इनका एटीट्यूड के इन्हीं से जीतना। वो सीरीज हम 3-2 ईच कर दिया, 2 वनडे 2 ईच, आई थिंक 5वां हम हार गए थे। बट वो ऐसी टीम थी। बॉलर्स की बात करें तब आई रिमेंबर 89 सीरीज़ में इमरान भाई ने जो पिचेस बनवाई थी उस ग्राउंड में हुआ था कि मिडल से थोड़ा रोल कम करना, मिडल से इतनी हार्ड ना, बिकॉज उनका ठप्पा ही वो मिडल में लगता था। और जब स्लो पिच पे 150 वाले बॉलर करें, पैटरसन आया, पैट्रिक पैटरसन, टोनी ग्रे था, माइकल होल्डिंग वाज एंड, पर मेलकम मार्शल जो मेरी बुक में इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज यू नो वो बात करते हैं डेनिस लिली की, और डेनिस लिली ने सब कॉन्टिनेंट में विक्ट्री ली। Sir Richard Headley and Malcolm Marshall. They did. Especially Malcolm Marshall. He got wickets everywhere in the world and he was quick. Yeah. He was very sharp, both the swings with the new ball, and he was the first West Indian who learned how to reverse swing the ball as well. So he was just phenomenal bowler, unbelievable. जो उसकी मैंने उससे क्या सीखा मैं as a young kid, कि मैंने उससे पूछा, मैं कि तू पहला बॉल वार्म अप क्यों नहीं करता? You know, I thought ऐसे करते हैं सारे. He said no, there's no time to warm up there. As a batter, if somebody is facing me, पहला मैं आके राम से बॉल करूँगा तो वो तो बिल्कुल सेट हो जाएगा पहली। तो मैंने पहली बॉल से स्प्रिंट मारनी, उससे मैं ये सीखा कि पहली बॉल से ही वार्म करके आना। हम देखते हैं जनरली बॉलर आते हैं, फास्ट बॉलर, एक दो जिस्म खुल रहा है, लूजनर करने की आदत को खत्म की गई, just to learn from that. Yeah, totally different aura, totally different mindset, totally different way of playing cricket. And totally different reasons to play cricket, as Hafiz you've pointed out, because there was no point on how many followers I have and how many superstar नहीं चलेंगे ground पे superstar. And there was hardly any money those days. Yes, so it was pure passion and not commercial reasons. कि मेरे पास इश्तेहार कितने, मेरे followers कितने, मैं मतलब मेरा अगले मैच में मैं पक्का हो जाऊँ, मेरी 50 पूरी हो जाए, ऐसी अप्रोच नहीं थी. It was about winning. क्रिकेट का ऐसा था कि I don't know आपका क्या है, मैं लास्ट 2000 में किया था. वो जब लंच करने जाते हैं ना, आप आफ्टर लंच आता है टेस्ट मैच में, जब नीचे आपने लंच रूम है, आपको टिकट देते थे कमरे ड्रेसिंग रूम में, सुबह मैनेजर को टिकट 1 प्लेयर, टिकट नहीं है तो लंच नहीं से करने देते. Seriously? अब आई डोंट नो, अब तो चेंज हो गया होगा, बिकॉज स्पोर्ट्स हैज इवॉल्व्ड फॉर बेटर over the years. The facilities are, I don't know कैसी हैं West Indies में. Usually West Indies are very laid back culture, and they're very cool people. कोई आपको याद हो आपके टाइम के, क्योंकि you also belongs to that era जिसमें brilliance जो है ना वो नजर आती थी. कोई ऐसा इश्तिहारी सुपरस्टार उस वक्त का जो याद हो? भाई पकड़ लेते थे. अच्छा, इमरान भाई स्किन जिनने फोरी और एंड जो एक्शन एक सेकंड में पकड़ लेते थे. और की करते सब फिर वो बता नहीं सकता मैं कि दोबारा वो खेल नहीं सी पाता. उन्होंने एक फील्डर को कुछ कहा, वो यू नो उनको क्या, इमरान भाई को क्या चीज़ बुरी लगती थी कि मेहनत जो करनी है ना वो करो, दिखाओ ना, शो ऑफ नहीं होनी, दिखावा मुझे ना दिखाओ. सो वो ही हेटेड, ही न्यू एवरीथिंग, वो हर चीज़ नोटिस करते थे. ही प्रिटेंडेड कि वो अलूफ हैं, कुछ नहीं, बट ही न्यू एवरीथिंग. ह्यूमन साइकी क्या है, क्रिकेट की, क्रिकेटर की साइकी क्या है, इसको मैंने कैसे यू नो बकअप करना है, इसको मैंने कैसे करना है, हर एक का डिफरेंट स्टाइल था. बट यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन एनीथिंग, इज क्रिकेट की बात कर लेते हैं इमरान भाई की, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्या था उसमें? मेहनत खुद करते थे और हम फॉलो करते थे. ये नहीं कि हमें कहते हैं कि तुम मेहनत करो, खुद नहीं थे करते. ही वाज द फर्स्ट वन. 5 चक्कर, 5-10 स्प्रिंटें, फिर घंटा डेढ़ बॉलिंग, फिर बैटिंग, फिर फील्डिंग, ये सारी उनसे चीज़ें सीखे हम. लीड बाय एग्जांपल. ते नाले ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮਿਸ ਮਾਨੂੰ. ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈੜੀ ਲੱਗੀ. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhri Alam. आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. With me in the Pavilion, I've got 4 fantastic former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, Misbah-ul Haq, and the great Wasim Akram. और हम लोग बात कर रहे थे इससे ब्रेक पे जाने से पहले of the past and some great cricket that the West Indies played and so forth and so on. But let's get back to the business of the HBL PSL Season 9. आइए जरा सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का मुकाबला. आज एक बार फिर रावलपिंडी से बराह रास्त आपकी खिदमत में ये आ रहा है मैच नंबर 21. It is Peshawar Zalmi versus Multan Sultans. 7 बजे बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर ये मुकाबला शुरू होगा. And this is the game we're going to be talking about now. This is going to be a very
interesting game because Peshawar Zalmi, after that defeat yesterday to Islamabad United, would definitely want that point. And Multan Sultans, they are a top unit right now, just absolutely fantastic in every department of the game. इसके बारे में बात करेंगे, but before we do, let's take a look at the head-to-head. Right, जनाब, ये रही head-to-head count इन दोनों की टीमों की आपस में 14 दफा इनका मुकाबला हो चुका है. मुल्तान ने इसमें से 10 मैचेस जो हैं जीते हैं और 4 पेशावर ने. और लास्ट 7 मैचेस में आप देख लें, मैच बड़ा क्लियर है. मुल्तान ने 6 मुकाबले जीते हैं और पेशावर ने सिर्फ 1 मैच जो है जीता है. तो दिस इज इंटरेस्टिंग हेड टू हेड. वसीम, देयर इज वन टीम जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फॉर द प्लेऑफ्स. दे हैव नथिंग टू लूज, but they are in supreme form in all departments. Bilkul, and winning is a habit. Yes. And these guys are not just this year, from last 3-4 years. I think 4 में से 3 दफ़ा तो रिजवान ने as a skipper, as a team, ये playoffs के लिए qualify किया. So that's big deal. Congratulations everyone involved, including the coach and of course the strategy team जो भी टीमें pick करते हैं. And looking strong they are. They're qualified. और पेशावर के खिलाफ कॉन्फिडेंस भी, ऑल्दो पेशावर आई थिंक एक मैच जो जीती है वो इनसे जीती हुई है. और मुल्तान में जीती थी, एट होम ग्राउंड में जीती थी. और ये मैच है पिंडी में, जहाँ के एवरेज स्कोर हमने देखा है कि 209 है फर्स्ट इनिंग का. सो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम. अब डिपेंड कि मुल्तान किसको रेस्ट कराते हैं. उनकी ऑप्शन भी बड़ी अच्छी है. उनके पास एक फास्ट बॉलर जो अभी तक एक मैच शायद खेला है, ओले स्टोन, 140 की बॉलिंग करता है. उसको जगह नहीं मिल रही उनकी प्लेइंग 11 में. सो दे पिक्ड अप अ वेरी गुड स्क्वाड. लाइक आई थिंक हफीज ने बार-बार स्टोन मेरे ख्याल में इंजर्ड हो गए हैं और शायद वापस चले गए हैं. और क्रिस जॉर्डन आ गए हैं. अब वो प्रीवियसली इंजर्ड थे, पिछला मैच खेले हैं. और द वे ही बोल्ड, आई थिंक वो जो आता है उनकी टीम में. नहीं, बट लाइक हफीज सेड अदर डे ऑन रेगुलर बेसिस कि आप स्क्वाड वो पिक करो कि जो कि कोई भी प्लेयर आपकी प्लेइंग 11 में फिट हो जाए. बिल्कुल. नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन हैपनिंग इन one or two of the teams in PSL this year as well. So it's a learning stuff for all the involved. कि वो स्क्वाड पिक करो 20 के 20 जो कि आपके प्लेइंग 11 में स्ट्रेट अवे आ जाए. बिल्कुल सही. And that's what I think Multan did. They did. They've done it really well. हफीज़, कल की डिफीट के बाद, कल एक पॉइंट पे पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह वसीम अभी बता रहे थे कि 18 रन पे 5 विकेटें उनकी गिरी हुई थी. They had a batting collapse yesterday. और वो तो आमिर जमाल के heroic से down the order that really gave them some kind of relief. But what kind of strategy do they come out today with? Because Multan Sultans को उन्होंने एक दफ़ा तो हराया हुआ है इस PSL के अंदर. But Multan Sultans is a very strong unit. देखें, जो बैटिंग का कोलैप्स की आप बात कर रहे हैं, उसकी रीज़न्स क्या थी? उसकी रीज़न बैड शॉट्स थी. उसकी रीज़न्स कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं थी, अदर देन दैट साइम अयूब की जो एक हम कह सकते हैं बॉल लग के अंदर आया, इनसाइड एज हो गया, कैच हो गया, दैट इज़ ओके. लेकिन अदर देन दैट आप जितनी भी डिसमिसल देखेंगे वो अच्छी शॉट्स नहीं थी. तो पहले तो बैटिंग को सॉर्ट आउट करना इनके लिए इशू ये है कि अभी तक इनकी जो राइट प्लेइंग 11 है ये उस कॉम्बिनेशन से हट गए हैं. 3 मैचेस जिस कॉम्बिनेशन के साथ ये जीते, एक सडनली उसको चेंज किया. अब अगर जो चेंज भी किया वो समझ में हमें इसलिए नहीं आया कि आपने जो भी सेटअप किया उसकी जो आपने जो कॉल किया अपने डिसीजन को, वो समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप चेस करने जा रहे हैं और आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाई है. तो वो दोनों चीज़ों में जो अभी तक मुझे लगा कि जो कल की गलती है, ये उनके लिए सीखने का एक मौका ये है कि अनटिल अनलेस ये अपनी राइट प्लेइंग 11 खिलाएं, जो कि मुझे लगता है कि जो वॉल्टर है वो शायद आज, अगर मैं हूँगा तो मैं नहीं खिलाऊंगा. ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि उनसे बेहतर ऑप्शन आपके पास मौजूद है. आसिफ अली ऑलरेडी डूइंग गुड जॉब, बॉलिंग आपके पास पूरी है. आसिफ अली कुड कम एंड प्ले एट नंबर 6. या अगर आपने इस तरह की कैटेगरी का प्लेयर लेना है तो हुसैन तलत आपके स्क्वाड में मौजूद हैं. ही इज़ बीन डूइंग अ गुड जॉब फॉर मैनी फ्रेंचाइजेज जो भी वो खेले हैं. ही कैन प्ले दैट नंबर 6 रोल फॉर हिम एंड ऑल्सो ही कैन बॉल अ बिट. तो ये देखना ये कि राइट कम्बिनेशन क्या खिलाते हैं. और ये बहुत बैंक कर रहे हैं. उनकी टीम की कामयाबी की वजह बाबर और साइम की ओपनिंग पार्टनरशिप है. जब ये नहीं कर रहे तो इनसे बाकी लोगों की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि हारिस टोटली इस PSL के अंदर नहीं समझ में आ रहे. वो जोश, आउट होना कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, इज़ नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बैट्समैन. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उनको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है, अगर बाबर और साइम में से कोई जल्दी आउट होता है तो कौन ऐसा बैट्समैन है जो उस वक्त के प्रेशर को एब्जॉर्ब करके एक मोमेंटम दे सकता है. क्योंकि श्योरली हारिस इज स्ट्रगलिंग एट नंबर 3. लाइक उन्होंने अच्छा भी किया हुआ है पिछले कई PSL में, लेकिन इस मरतबा के PSL में ही इज़ टोटली ऑफ कलर. दूसरी वजह ये भी है फीस के वन डायमेंशनल जब भी आप टीम पिक करते हैं ना, वो फिर बैटिंग लाइनअप है तो आपने सोचा कि पिंडी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है तो यहाँ पे हमें सारे ऐसे बैट्समैन चाहिए जिनके स्ट्राइक रेट्स अप हैं और जाके वो बस जाते ही शॉटें खेलें.
ऐसा नहीं है। आपको कम से कम आपकी टीम में अगर बाबर और सैम की बात करते हैं तो कम से कम एक बैट्समैन और ऐसा ज़रूर होना चाहिए नीचे, जैसे पहले हसीबुल्ला थे, जो हर किस्म की गेम खेल सकते हैं, जो 4 डे में भी रन्स कर रहे हैं, 1 डे में भी रन्स कर रहे हैं, टेक्निकली बेहतर प्लेयर हैं, इवन T20 में उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है। तो कम से कम एक बैट्समैन तो और ऐसा होना चाहिए। हारिस हैं, फिर कैटमोर हैं, वो सारे ऐसे ही, पावल हैं, वो सारे जो नीचे पांचों के पांचों बैट्समैन आपके थे, उन 2 के अलावा 3, वो रुक नहीं सकते। जैसे ऐसी सिचुएशन आई तो वो जाते ही आउट होते गए और फिर कोई आपको संभालने वाला नहीं था। तो थोड़ा सा वो हफीज़ की बात ठीक है कि आपने देखना है कि यार सिर्फ उन पे नहीं है, उनको भी नीचे से आपने कोई ऐसा बैट्समैन देना है, चाहे वो हुसैन तलत है या फिर हसीबुल्ला, एक बैट्समैन और आपको ऐसा खिलाना पड़ेगा। Who do you think that batsman should be? I mean, इन्होंने तो बता दिया हुसैन तलत भी इनके पास है, वो भी है। आपको क्या लगता है, आप जब स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं सर? देखिए TKC कैटमोर जो हैं वो इस टूर्नामेंट में आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं। बाकी जो प्रीवियसली भी उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले हैं उसमें भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है उनकी। आई थिंक हम डैनियल मोजली जो ऐसे प्लेयर हैं उनको अगर उनके ऊपर टॉप ऑर्डर में खिलाएं, उनके पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगी और एक लेफ्ट हैंडर उसामा मीर उनके मुल्तान सुल्तान के बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। उनका जो है वो हसीबुल्ला का अंदर आना भी बहुत ज़रूरी है। हारिस इज़ नॉट इन गुड फॉर्म। हसीबुल्ला ने इस टूर्नामेंट में रन्स कर रखे हैं। तो आई थिंक ये दोनों को अगर ये इंडक्ट करते हैं तो लेफ़्ट हैंडर इन द मिडल ऑर्डर दोनों खेलेंगे। और मोजली जो हैं प्रॉपर तरीके से बैटिंग भी करते हैं अगेंस्ट स्पिनर, रिवर्स स्वीप्स, और ये इनकी बड़ी स्पेशलिटी है। तो आई थिंक कि इनको वेरी गुड फील्डर जो ये मैच जीते थे जिसमें उन्होंने एक बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा था, ऑलमोस्ट छक्का हो चला था। तो आई थिंक कि इनको, जैसे मिसबा भाई ने बात की ना कि इनके पास जैसे बाबर हैं, बाबर के अलावा कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जो बीच में अगर ये 1-2 विकेटें गिरती हैं तो फिर संभाल लें। इनके पास एक ही ऑप्शन है जो लास्ट इनिंग में हमने देखा कि सारे हिटर्स ही हैं, तो जो एक होता है ना एंकर करने का, बाबर के अलावा इनका कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो हसीबुल्ला एंड मोजली बोथ कैन प्ले दैट पार्ट एंड दे कैन प्ले एग्रेसिवली एज वेल। ऑलराइट, आमिर जमाल, Misbah, do we look at Amir Jamal as a batting all-rounder now or as a bowling all-rounder? देखिए बेसिकली है तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन अभी तक वाइड बॉल क्रिकेट स्पेशली T20 को अंडरस्टैंड, क्योंकि एक बंदा अगर 140 प्लस पे बॉल कर सकता है, इट्स ओनली द केस ऑफ राइट एरियाज। आपकी लेंथ्स जो है आपने समझना है कि भाई रेड बॉल में कौन सी लेंथ है और वाइट बॉल में कौन सी लेंथ है आपकी। मुझे लगता है कि ही इज़ टू मच हेयर एंड देयर, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है उनकी। फुलर गेंद होगा, शॉर्ट कर देंगे, कभी उस तरफ कर देंगे, तो कंसिस्टेंट एक लेंथ पे आके उनको ये देखेंगे, ये वाले बॉल अगर वो कर रहे हैं, ही इज़ गुड इनफ बॉलर, जितनी उसकी पेस है कि इतने आराम से नहीं रही है, फिर स्लोअर वन कर दिया तो अननेसेसरी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी ऑलमोस्ट 10 है या 10 से भी ज़्यादा है इनकी T20 क्रिकेट में। आई स्टिल बिलीव बॉलिंग उनको अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। वाइट बॉल क्रिकेट में तो 1 डे क्रिकेट और T20 क्रिकेट वो दोनों खेल सकते हैं। उनकी बैटिंग हमने देखा कि जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की है, नंबर 7 पे अगर ऐसा प्लेयर है आपके पास इन एनी फॉर्मेट, आई थिंक दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द टीम। Yeah, just some incredible hitting there yesterday by him, Wasim. Some very good shots that he played. Yeah, I think the Australia tour must give him so much confidence. जो उसने 80 किया है सिडनी टेस्ट में जी। और जिस सिचुएशन में किया है against one of the best bowling attacks in world cricket. Right. Quick bowlers like Hazelwood, Pat Cummins, and then of course Mitchell Starc. I mean, उनको तंग करके रख दिया। फिर उसने उसके अलावा द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान टू, दैट्स अ बिग डील। सो यू नो दैट कॉन्फिडेंस यू कैरी, या आई बिलोंग हियर एंड आई थिंक ये उसका पहला 20 बॉल का 50 था कल। वसीम भाई एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है इसका, ओवरऑल फील्डर, कंप्लीट क्रिकेटर है, फील्डर बहुत अच्छा है। सेलिब्रेशन भी अच्छी हो गई है कल। सेलिब्रेशन बस निकाल दे, माइनस कर दे। कल उन्होंने बल्कि अपने प्रेसर में बोला है कि आपको हर दफा एक नई सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी। बट आई हैव अ क्वेश्चन हफीज, आप मुसलसल, इनफैक्ट the whole panel has been saying this, Wasim, Misbah, Azhar, that the more you play with red ball, the better you become at this format as well. And Amir Jamal has played a lot of considerable amount of red ball cricket, but why is he not getting his lengths right in this white ball format? What's going on there? देखिए डिफरेंट टैक्टिक्स हैं एज ए बॉलर। रेड बॉल के टैक्टिक्स डिफरेंट हैं। रेड बॉल आपको मदद फ्राहम करती है टू एडजस्ट इन एनी फॉर्मेट, टू प्ले एनी फॉर्मेट। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट जिसकी मिसबा बात कर रहे हैं,
रीसेंट पास में इनको देखा गया कि जब ये इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, स्पेशली T20, वनडे तो अभी तक शायद ये खेले नहीं है, जो इन्होंने T20 फॉर्मेट खेला है उसमें बेसिक्स ऑफ द गेम हिट करते हुए वो जो वेरिएशन है उसको बहुत ज़्यादा या तो अप्लाई करते हैं जिससे मार पड़ती है। तो मुझे अभी लगता है कि एज ए बॉलर जो पेस है इनके पास है, tactics of the game in this format he needs to learn a little bit extra, he needs to have a more confidence, क्योंकि एज ए बॉलर जब तक आप टैक्टिक्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते, जो भी टैक्टिक्स हैं, अगर बताया कि एंड में यॉर्कर मारने हैं और यॉर्कर अगर आपका एक अच्छा लगता है, जो वसीम भाई ने बात की है कि यार अगर 5 अच्छे कर सकते हो तो 5 क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पे खाम खा का स्लोअर 1 करके छक्का क्यों खा रहे हो। और मोस्टली जब आप इनकी बॉलिंग देखेंगे तो इनको जो मार पड़ी है वो बुरे बॉलों पे पड़ी है। तो किसी तरह वो जो लिमिट अपनी जो वाइट बॉल क्रिकेट या T20 क्रिकेट में अपनी गलतियों से मार खाने से बेहतर है कि उसको कम किया जाए। तो वो एक एरिया जो इनको इम्प्रूव करना है। अब ये देखिए 2 कपलों की शॉटें मारी हैं, एक ये चलो बैड लगती है, एक लात पे थी वो छिक्का पड़ा, दैट वाज अ गुड शॉट एज वेल, एंड देन एक स्लो बॉल बिला वजह। उसने आपने हाइलाइट्स में ये भी देखा होगा कि इसने 2-4 गेंद किए जो शादाब को लगे हैं जाके, इसका मतलब है कि ऑफ द पिच भी ये स्किट करता है बॉल को। आई थिंक ये रेड बॉल क्रिकेट में जो इनका रोल है ना वो है अटैकिंग बॉलर, इसमें ये बाउंसर्स की फील्ड सेट करते हैं सम टाइम, और जब भी इनका ये ज़्यादातर ये नहीं होता कि लाइन लेंथ बॉलर नहीं नज़र आई है। ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो इनका इकोनॉमी रेट हायर साइड पे, इनका 4.09 का इकोनॉमी है, जो कि एवरेज बहुत अच्छा है, विकेट्स लिए हैं उन्होंने, लेकिन इज़ नॉट एज कंसिस्टेंट बॉलर, वो कंसिडर नहीं होते, या वो इधर उधर जाते हैं कई दफ़ा। तो इस वजह से ये चीज़ आपको T20 में भी नज़र आएगी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि आपको विकेट्स आपको कवर कर जाती हैं, अगर आप विकेट टेकिंग बॉलर हैं तो इकोनॉमी रेट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन T20 क्रिकेट में ऑब्वियसली अगर आप विकेट ले भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं तो इन दी एंड वो आपका सक्सेसफुल मैच नहीं जाएगा। तो आई थिंक कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा लाइन लेंथ पे फोकस नहीं करते, ही अटैक्स एंड ट्राई एंड गेट विकेट्स। देखिए वो एक ही तरीका है आपका कि आप क्लैरिटी लेके आए, अपना जो गेम प्लान है उसमें क्लैरिटी लेके आए। जब आप भागते हुए सोचते हैं, वसीम भाई बेहतर जानते हैं कि भागते हुए आप खुद श्योर नहीं है कि मैंने कौन सा गेंद करना है, तो एंड अप यही होना है कि एंड पे आप जो है ईजी बाउंड्री देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इनके साथ काम करने की ज़रूरत है और इनको खुद भी काम करेंगे। अगर मैं सोच रहा हूँ कि यॉर्कर है तो दैन इट्स ए यॉर्कर, और अगर ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर है तो यॉर्कर है, उसको मैंने एग्जीक्यूशन पे जोर देना है। एग्जीक्यूशन गलत होती है तो ये थोड़ा सा इधर मिसबा जो आप बात कर रहे हैं, आजकल के दौर में ये जो जिस तरह के इंटेंट से आजकल की क्रिकेट खेली जा रही है, हर बैट्समैन जो है वो अटैक करने की जोन में जाता है। इस फॉर्मेट में 8 की इकोनॉमी इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर एनी बॉलर, स्पिनर या फास्ट बॉलर। हाँ 10+ भी अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं टेक्टिकली एरर कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गलत बॉलिंग कर रहे हैं। 8 साढ़े 8 इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमी नाउ डेज। तो इनको थोड़ा सा अपने बैट बॉल कम करने हैं, जो मुझे लगता है कि ही कैन, बिकॉज ही हिट द राइट एरिया सम टाइम। अगर वो सम टाइम है तो उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ानी है कि अगर एक एरिया 6 to 8 मीटर मुझे ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है तो मैं क्यों इधर उधर जाता हूँ, क्यों नहीं मेरा वो कंट्रोल। तो ये मुझे लगता है टैक्टिक्स इनको अपने इंप्रूव करना। एंड एज अ बॉलर वंस यू कमिट योरसेल्फ कि मैंने ये डिलीवरी करनी है बिफोर यू रन अप, इफ यू हैव डाउट इन योर माइंड देयर इज एवरी चांस यू माइट गेट हिट फॉर 6। सो वो कमिट करो, स्लो करना है, फास्ट करना है, बाउंसर करना है, एंड देन बिलीव इन दैट एबिलिटी ऑफ योरसेल्फ एंड देन रन इन। डोंट गो कि मैं 3-4 क्या करूं, ये लास्ट मिनट पे ये कर दूं, फिर उससे प्रॉब्लम होती है। Yeah, just overthinking it can result in a lot of erratic. Is why you wanted to add something? वसीम भाई बिल्कुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में जो आप करते हैं या कोई भी अच्छा बॉलर करता है कि असेस भी करना है कि हाँ जी मेरा इस पिच के हिसाब से, बैट्समैन के हिसाब से सबसे बेस्ट बॉल कौन सा होगा। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनकी, कि वो अक्सर जो है वो उस बैटर की स्ट्रेंथ पे बॉल कर देते हैं। जैसे शादाब को अच्छे बैक ऑफ लेंथ हार्ड लेंथ पे बॉल किए, सडनली आगे स्लोअर 1 कर दिया या मुंह पे गेंद कर दिया, जो उन्होंने उनकी शॉट है उन्होंने आराम से स्क्वायर लेग के ऊपर से 2 छक्के मार दिए उनको। तो ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो मेरा नहीं ख्याल 2 या 2.5 की इकोनॉमी नीचे आराम से आ सकती है। It is manageable. Now, let's talk about Saim Ayub now. Saim Ayub's bowling, actually. Yesterday, he showed a lot of promise. He has been showing those glimpses over and over again, मिसबा के वो अच्छी bowling कर सकते हैं नए गेंद के साथ भी। मगर कल उनको कप्तान ने 2 के अलावा ओवर नहीं दिए, हालांकि काफ़ी उन्होंने जो है वो मुसीबत डाली हुई थी सांबा यूनाइटेड के बैट्समैनों को। Should Saim Ayub be used more often as a bowler? ऐसा बॉलर हो तो मैं तो उसको पूरी कोशिश करूँगा कि वो 4 ओवर करे। इवन वनडे में भी अगर वो खेल रहा है तो मेरी तो कोशिश ये होगी, हफीज़ उस टाइम खेलता था स्टार्ट में, इसने बॉलिंग शुरू की
तो पार्ट टाइम कभी कभी ये बॉल करता था, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि एटलीस्ट मैं मैक्सिमम जहाँ पे बेनिफिट हो रहा है टीम को, तो आप ऐसे बॉलर को कराएं, आपके पास ऑप्शन बढ़ जाती हैं, जो आज का रिजवान कर रहा है। आई थिंक अगर नया बॉल जैसे वो कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ वो बॉल स्पिन हो रहा है कैरम बॉल, बल्कि वो जो ये आम बॉल टाइप कर रहे हैं, एयर में अंदर आ रहा है, क्रैम्प कर रहे हैं बैट्समैन को। और फिर जिस तरीके से मनरो को भी उन्होंने आउट किया, ये देखें पूरा सेटअप किया, पीछे हट रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा दूर ऑफ स्पिन किया स्लो, और वो मैनेज नहीं कर पाया उस चीज़ को, विकेट ले गए। तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो हफीज़ की भी बात मैं कर रहा हूँ, या किसी भी इफ्तिखार करता है बैट्समैन की, वो जो गेम अवेयरनेस है और मेंटालिटी बैट्समैन की आपको पता होती है, साइकी ऑफ द बैट्समैन। आप बहुत सारी चीज़ें बॉलरों से बेहतर करते हैं कि आपको एग्जैक्टली वो उस दिमाग से आप सोच रहे थे कि बैट्समैन अब क्या करने वाला है, तो आप फ़ौरन अपनी लेंथ को, पेस को एडजस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी अंडर यूटिलाइज है, 2 ओवर कराने चाहिए तो उसको अगले भी, दैट कुड हैव बीन द डिफरेंस इन द गेम। हफीज़, आप भी नए गेंद के साथ बड़ी दफ़ा आपको बॉलिंग करवाई गई है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट व्हाट साइम इज़ डूइंग राइट नाउ? No, I think hitting the stump is the most important as a new ball operator, as a spinner. क्योंकि किसी भी फॉर्मेट, स्पेशली T20 में जब आप बॉल करते हैं, तो अगर आप स्टंप से दूर जाते हैं तो कट लग जाता है, थोड़ा मुंह में आ जाए तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट लग जाती है। आई थिंक व्हाट ही इज़ डूइंग एट द मोमेंट एब्सोल्युटली राइट, कि एज ए बॉलर ही इज़ नॉट ट्राइंग एनीवेयर एल्स जस्ट टू हिट द स्टम्प्स। राइट। जितनी देर कोई भी, इवन दुनिया के जितने भी जो वाइट बॉल जो इस फॉर्मेट में कामयाब हुए हैं, इमाद वसीम हिटिंग द स्टम्प्स मोर ऑफन, सैमुअल बैदरी वो करते थे, दैट ही यूज्ड टू हिट द स्टम्प मोस्ट ऑफन। तो जब आप ये सक्सेस है, जब आप स्टम्प्स को हिट करते हैं एज ए बॉलर, थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ी सी गलती कैन गिव यू विकेट्स। All right, folks, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we've got more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स। Our continued coverage of the HBL PSL 9, and with me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, I've got Misbah-ul Haq, and I've got the great Wasim Akram. और हम लोग बात कर रहे थे आज के मुकाबले की, it's going to be Multan Sultans clashing with Peshawar Zalmi. कल जरा पेशावर ज़ल्मी के बारे में बात कर रहे थे, 3 रन आउट मिस किए हैं वसीम उन्होंने। दिस फील्डिंग थिंग, हमने कल इस पर बड़ी बात भी की, कल हफीज ने हमें डेमो भी दिखाई, सारा दिया। दिस फील्डिंग थिंग इज बिकमिंग रियली क्वाइट ए कंसर्न एवरीवेयर. It's like a pandemic that is spreading. It's like a disease. It's spreading everywhere in Pakistan cricket. I mean, especially, obviously, ये आपका structure वहाँ से शुरू होता है. ये देखिए. Run out तो चलो मिस हो जाते हैं. Direct hits का we can't tell, but drop catches की problem. Those were good efforts. Good efforts. अब वो direct hit के chance है. अब ये बहुत अच्छा ये भी effort थी. लेकिन dive मारी है तो बचा ये. लेकिन वो लग जाती तो फिर भी आउट ही था. देखिए ये बहुत क्लोज गया ना, इसको तो अगर थ्रो वाइड जाए बहुत ज़्यादा, फिर आप sometimes it's luck factor. Yeah, these are the luck factors, but in general, the fielding standards by Pakistani, not team, but Pakistani players, even जो हमारी young pod भी आ रही है, apart from one maybe or two, they're just average, unfortunately. ये जो आप कह रहे थे कि ये मतलब डायरेक्ट थ्रोज का बड़ा वो है कि लक फैक्टर है, लगी तो नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग तो बड़ी प्रैक्टिस, आई हैव सीन यू गाइस इन योर डेज, आई हैव सीन यू गाइस डू प्रैक्टिस ऑन सिंगल चलें, अब हमारी एग्जांपल ना दें, आप दुनिया का जो क्रिकेट हिस्ट्री में बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड एवर आया है, जॉन्टी रोड्स, उसको देख लें आप। वो पॉइंट से मारता था बॉलर को, उसको एक स्टंप नजर आ रही होती थी, और आई थिंक वो 10 में से कम 8 उसकी लगती थी। और ड्यूरिंग द मैच अभी रिसेंटली लेबुशेन, हाँ लेबुशेन, उसकी सबसे ज्यादा रेशो है हिट द स्टंप्स, यस, और वो उसकी प्रैक्टिस करता है। या वी यूज्ड टू वॉच, लाइक जब हम अपने सेशंस को करके निकलते थे, या वो कर होता था या वो पहले करते थे, तो ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग ऑन दैट, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपने मास्टर करनी है उसकी प्रैक्टिस है, उसके एक्स्ट्रा आवर्स हैं जो आपने अपनी गेम में डालने हैं। और वो दिखने को तो बहुत अच्छा लगता है कि जी फलां बंदा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे वो कितनी मेहनत कर रहा है वो हम भूल जाते हैं। So everyone has to do that. एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने जॉन्टी रोड्स की बात की, अभी कवर में जो फील्डर हैं नॉर्मली, जैसे मैं पाकिस्तान टीम में आई यूज्ड टू फील्ड ऑलवेज एक्स्ट्रा कवर, दैट वाज माय पोजीशन, और मिड विकेट। तो जब आप एक स्पेशलिस्ट हैं या पॉइंट पे आप करते हैं, तो देन यू कैन ऑलवेज डू प्रैक्टिस ऑफ दैट। और एक तो मैच प्रैक्टिस है आपकी, कंसिस्टेंटली आपकी थ्रोइंग लगते हैं, फिर शायद अफरीदी करते थे वहाँ पे मिड विकेट या
एक्स्ट्रा कवर पे, यूनुस खान थे तीसरे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पोजीशन पे अगर अपनी पोजीशन पे हैं और वहाँ की आपने प्रैक्टिस की है प्लस गेम मैच प्रैक्टिस, फिर आपकी थ्रोएं लगती हैं। आप किसी नई जगह पे जब खड़े होंगे और उन एंगल्स पे आप सेटल नहीं है उस तरीके से, तो रेशियो ऑफ हिटिंग डायरेक्ट कम होगी आपकी। तो एक बात तय हो गई कि इसके लिए भी प्रैक्टिस दरकार है बिल्कुल। और इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस जो है वो मौजूद है। जी। लेकिन 20 मैचेस हुए HBL PSL 9 के, 34 कैचेस ड्रॉप हुए हैं हमारे इस HBL PSL। Yeah, I know. 34 में रेशो आप जरा चेक कर लें। He'll be about 80, पाकिस्तानी प्लेयर 90%. कितने और ओवरसीज आई एम श्योर कि हमारी तरफ ज्यादा होगा। 30 हट बदकिस्मत होंगे। ये जरा दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, लोग ड्रॉप कैचेस इसमें नजर आ जाएगा हमें काफी हद तक। राइट, हारिस रऊफ गेंदें कर रहे थे, शादाब का कैच था और शाहीन शाह अफरीदी ने गालिबन ड्रॉप किया था। ये तो खैर शमसी साढ़े मंग रही है। हाँ, साढ़े देसी है, देसी है। अब इनको तो ड्रॉप नहीं कहेंगे, दे वर लाइक गुड चांसेस, Right. जिसको ड्रॉप कहेंगे। अरे वाह, ओह वाह वाह वाह, बालों वाला ड्रॉप, या नया नहीं हो सकता। ये टफ है। ये टफ था, गुड ट्राई। ये तो बहुत ही इमाद से हुआ था ये। ड्रॉप ये भी मार से हुआ। खुशी, ये कुछ दिल। ये खुश दिल, ये शाहीन का, ये शाहीन शाह अफरीदी, ये खुश दिल, ये भी अबे कितने छोड़े हैं कुछ दिल ने। मैन ऑफ द सीरीज है फिर सो फार। कल ही हो गया। मेला कले नहीं लुट लिया। मेला लूट लिया। Yeah, they My mostly, goodness me. unfortunately, they are Pakistani fielders. Okay, that was a good try. That is not ये That's तो ऐसे not- कैच तो not फंसते हैं, drop. ड्रॉप तो नहीं कहेंगे इन्हें। ये ये वाला ड्रॉप कहेंगे। यस, घंटा पहले छलांग मारती। गुड ट्राई। ये नवाज के तो नवाज ने रन आउट किया था। that was a good effort. That was a good effort. Oh, brilliant. Oh, Okay, that's a great effort. Oh, ये तो गोल करवाया था भाई ने। Okay, good try. Oh, that was a बहुत dolly. अच्छे। बोलो। या किसी। ये वो कवाली। कवाली। ये- That was the easiest one probably, keeper वाला। Oh, this was also South. terrible. That was South Ball. Yeah. साउथ भाई ने भी नंबर 2 पे है साउथ भाई। जी, जी। Yeah, this is tough one. That was a good try. That was a good try. तो कितने कैचेस दिखा दिए हैं आज भाई। टोटल आपने 34 बताए। 20 में 34 हुए थे। 6 मैंने काउंट किया, हो सकता है एक आध मिस्टेक होगी। 6 मैंने काउंट किए हैं जो ओवरसीज थे। ठीक है, बाकी सब अपने थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनकी कहूँ। Attention to detail थे फीस भाई यहाँ पे। नहीं, मैंने बाकी पूरे count 34 किए। में से कम 8 तो खुश दिल ने ड्रॉप किए जो नजर आए हैं। जो नजर आए। And 4 मुझे 2 से 3 4 नजर आए हैं जो अपने साउथ के। Yeah. So guys, you got to improve your fielding. That's it. ये बल्कि हम सोच रहे हैं कि जब ये तो अभी 20th पे है ना, एंड में ना आखिरी फाइनल से पहले भी जो है हम एक पूरा पैकेज बनाएंगे आपके लिए जिसमें सारे दोबारा लगाएंगे। इनको सिर्फ ये समझाएं कि भाईजान ਤੁਹਾਡਾ 70 भी वारेज नहीं है। ਤੁਸੀਂ 2 कैच ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ 125 कर देंगे ने 2 मिल के। अच्छा, विराट कोहली ने एक दफ़ा ये बड़ी ज़बरदस्त इंटरव्यू हो रहा था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि ड्रॉप कैच खाली वो नहीं होता जिसमें आप पहुंच जाओ और छोड़ो। ड्रॉप कैच वो भी होता है जिसमें आप पहुंच सकते थे, आप नहीं पहुंचे। तो ही सेज कि फिटनेस में आप अगर अच्छे होंगे तो आप उन कैचेस पे पहुंच जाएंगे जो समटाइम कोई और बंदा रीच नहीं कर सकता। So I think this one- अनफॉर्चुनेट माइंडसेट है कि ये भी क्योंकि मैंने रिसेंटली साथ तो जिसने 50 किया है ना वो ये समझ रहा है उसने 50 किया है, लेकिन जो उसने 2 इंपॉर्टेंट कैच छोड़े हैं वो उसके मुतालिक परेशान नहीं हो रहा नहीं है। कि यार मैंने 2 कैच छोड़े हैं, वो बंदा 150 कर गया है, वो 90 कर गया है, उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं है। अपने 50 पे वो कहता है जी मैंने 50 किया है, मुझे आप कैसे कुछ कह सकते हैं। उसकी एक इसी तरह T20 में चले जाएं, T20 में भी यही है कि लाइक अगर एज ए बैट्समैन आप फेल हो गए हैं, वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने अकेली इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आपका फेलियर है वो एक्सेप्टेबल है,
लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरी टीम फेल हो रही है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इस वो जो बात है कि हम उतनी अटेंशन पे नहीं करते कि फील्डिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे बड़ी एग्जांपल क्या होगी कि ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट चांस था, ओनली डिफरेंस वाज द फील्डिंग। 16 पे 4 है, 2 कैच गिर गए। मेलबर्न का टेस्ट जीता हुआ बिकॉज ऑफ फील्डिंग, सिडनी टेस्ट हमारी बहुत शानदार पोजीशन बनती बिकॉज ऑफ फील्डिंग। तो ये इशू हैं जिसकी वजह से ये तो अभी 2 हैं। इसके अलावा T20 में भी हमने कैचेस छोड़े और इससे पहले भी अगर हम चले जाएं तो बहुत से वर्ल्ड कप और एशिया कप ये जो फेलियर आया इसमें बहुत सी वजूहात में फील्डिंग और फिटनेस ये 2 तो आपकी ये मैंने भी न्यूज़ आपको पढ़ के सुनाई है ब्रेक में कि पाकिस्तान टीम काकुल जाएगी बूट कैंप के लिए जी फॉर अ वीक, फॉर 10 days आई थिंक। यू थिंक 10 days विल मेक अ डिफरेंस मिस्बा गाइस? 2 हफ्ते होना चाहिए, 2 हफ्ते हमने किए थे। इट डज मेक अ डिफरेंस जिस तरीके से वो ट्रेनिंग कराते हैं। आज दिन आई तो सिर्फ तबीयत साफ होनी है, तबीयत साफ होनी फिट तो नहीं होनी। एंड नॉट ओनली फॉर फिटनेस, आई थिंक के Mental fitness. इट्स ऑल अबाउट दैट बिकॉज के वो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे होती है डिसिप्लिन। और out आप of कोई comfort. डिफरेंस नहीं है, आप उसमें कोई मिसबाह लग नहीं था, कोई यूनुस खान नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था कि दे आर नॉट ट्रीटेड डिफरेंटली। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अगर आप सीनियर हैं जो मर्जी है, अगर आप पीछे हैं या आप डिसिप्लिन शो नहीं कर रहे, उसके लिए भी वही सजा है जो दूसरे। चलें, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट, आई एम सो ग्लैड You should be going there too. नहीं मैं तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये है कि आपने ये जो चले जाएंगे वापस, पता नहीं आते कि नहीं। कम से कम 3 वीक होने चाहिए, 10 दिन जो है ना, 2 वीक के Time बाद शायद तो ये फर्क पड़ना। टाइम और स्केड्यूल का भी होगा। बट ये हमने कल बात की थी, इन्होंने अपना जब बताया था कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले आप लोगों ने वो किया था, आई थिंक उसका कोई असर हुआ है कि आज ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। 2 साल हम उस कैंप के 2 साल बाद तक वो जो है हमारी फिटनेस जो इम्प्रूव रही थी। तो तमाम वो जो कैंप में जा रहे हैं वहाँ पे उनके लिए कोई पैगाम देना पसंद हाँ, करेंगे? जरा आप? मस्ट है। जरा must है। पैगाम यही है कि ट्रेनिंग अभी से शुरू करें। ट्रेनिंग अभी से शुरू कर दें। अभी से शुरू करते हैं ट्रेनिंग। तो वहाँ खाना कैसे मिलता है? टाइम से मिलता है, सर्टेन टाइम, ब्रेकफास्ट, Everything is by time. By time, I know. I Everything can is understand. precision oriented. असल में वसीम भाई जो ट्रेनिंग है ना, शायद इससे ज़्यादा ट्रेनर उनको फोर्स करते हैं करवाने को यहाँ पे भी। Yeah. लेकिन वो जो मैनेजमेंट है ना, वो जो माइंडसेट तोड़ा जाता है कि Yeah. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि वहाँ जाके कोई ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है Yeah, जो आज से बिल्कुल। पहले आपने नहीं कभी की होगी। Discipline वी है। ऑल्सो डू दैट। वो जो डिसिप्लिन और जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके मेहनत करने But की ये जो 2 वीक हैं वो आपको समझ आते हैं। बेसिकली आप हफीज ये कहना चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान टीम का कैंप नॉर्मल लगता है तो किसी को कहा कि जी आपने 5 चक्कर लगाने हैं और 20 पुशअप्स करनी है, तो कहा यार मेरे इतने दर्द हो रहे हैं, कोई ना कोई- अभी मुझे यहाँ पे हो रहा हाँ, है। फिल्म जरा चल वहाँ पर जाती है। जब इस तरह की फिल्म चलेगी वो तो नहीं क्या बात होगा होती। मिसबा? जब ये वहाँ काकुल में इस तरह की फिल्म चलाएगा कोई तो उसके साथ क्या For होता है? instance, मैं कहता उसको कोई कहेगा यार मेरे से पुशअप नहीं हो रहे, तो साहिबान कोई मसला नहीं, साहिबान जरा ले दें इनको 5 चक्कर लगवा के लाएं। अगली दफा जरा दूसरा होएगा ना, वो डिग दिया भी कहेगा नहीं मैं लावांगा जी, ऐ कोई नहीं फॉर कहेगा मैं इंस्टेंस नहीं हूँ। मैं कहूँ मेरा एंकल मुड़ गया या मुड़ गया फॉर इंस्टेंस, जी जी जेन्युइन मिस्टेक है एंकल, तो क्या? कोई मसला नहीं है, एक फरिश्ता जड़ा ना आके बैठ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, अच्छा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ 5 ਘੰਟੇ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। कमरे लेकिन if you are really injured, you are out of the camp. श्योर। Yeah, yeah. If you are really injured, हाँ, you are if out you- of the camp. Yeah, okay. लेकिन if you are there for a right reason, आप चाहते हैं कि आप फिट हों, तो फिर then you need to bring that मैं attitude ये in. खुशखबरी ये सुना खलियाँ दूं, पड़ी। जिसको भी इंजरी होगी वो घर नहीं जा सकेगा। हाँ, ये नहीं हो सकता आप घर जाएंगे। अच्छा। हाँ, अगर पैर मैं तो किसी का समझ खराब रहा हो ना गया कि मैं जैसे अनवर का हो गया था, पैर अगर उसका मुड़ गया है, कोई मसला नहीं है, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, उसको बिठा के अपर बॉडी दूसरी टांग जो ठीक थी उस पे ही 5 घंटे उन्होंने ट्रेनिंग करा दी, उसको पुशअप करा दी, एक उसको टांग पे भी ट्रेनिंग करा देते हैं। मतलब कोई सोच रहा है ना कि मेरा कोई बहाना मुझे बनाने बहुत खुशी है। आई वुड लव टू सी, आई होप के वो अलाउ करें उसकी ये PCB नहीं वाले। बनाते वो BTS। मैं वही कह रहा हूँ, उसकी बाकी हर BTS बना चीज़ कर दे। BTS मैं ये- बनती मैं कसम से मैं कह रहा था, आई होप के PCB वाले उसकी बिहाइंड द सीन्स के वीडियोस रोजाना ट्वीट करें, स्पेशली जब Real ये PCB 3 के दिन बाद account से। सो के उठे सुबह। हाँ हाँ वसीम भाई, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी फिटनेस की बात होती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ फिटनेस टेस्ट की बात होती है, फिटनेस टेस्ट एंड फिटनेस इज नॉट अबाउट फिजिकल, इट्स अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। आप यहाँ से जब हार नहीं मानते, और यही ग्राउंड में होता है जब मुश्किल सिचुएशन में आप यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करते कि हार रहे हो, जो इमरान भाई भी हमेशा कहते हैं कि हारते अब तब वो जब यहाँ मान जाते हो कि हम हार गए, तो वो ये मेंटालिटी वहाँ पे डेवलप करते हैं एज ए टीम कि भाई या कर जाओ या मर जाओ, तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि मैं बैठ जाऊंगा बस। ये एज अ लाइफ में यही है आपके लिए। Outstanding, just outstanding. I so look forward to those 10 days in the Pakistan camp. I'm super excited about that. I'm really going to
really going to be All right. microscopic detail into मेरा it. ख्याल है इनको साथ ही भेज देना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Yeah. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ नहीं, खाने की रोटी खानी। It's good. It's तकलीफ good for थोड़ी ना Pakistan. सिर्फ यही नहीं होता, वहाँ आप Entertainment एंजॉय भी भी करते हैं, वहाँ पे साथ ही में मरम पट्टी शुरू हो गई है मिसबा की तरफ वॉर से। होती है वहाँ पे गेम्स, वो हाँ, क्या हाँ, उसको भाई, कहते हैं दूसरी गेम जो बिल्कुल। वो हाथ लगा के दूसरी तरफ जाना होता है। आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। Enjoy ये करेंगे। आप समझे, आप 10 दिन के लिए एक जबरदस्त रिजॉर्ट पे जा रहे हैं, वहां पर गेम्स भी होंगी, खाना भी बड़ा अच्छा मिलेगा, सब कुछ टाइम पे होगा, सब कुछ टाइम पे होगा। और इसी के साथ टाइम हुआ है नंबर्स गेम का। ये नंबर्स गेम आ गई जनाब आपके पास स्क्रीन पे। मोस्ट विकेट्स टेकन इन द पावर प्ले इन द HBL PSL 2024 में हमने देखा है मुल्तान सुल्तान have been the most successful ones and पेशावर ज़ल्मी still down the order। इन्होंने 6 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं पावर प्ले के अंदर, जबकि मुल्तान सुल्तान ने शायद 7 मैचेस में 11 लिए हैं। दैट्स द मोहम्मद अली इफेक्ट राइट देयर ऑन टॉप फॉर मुल्तान सुल्तान दैट ही इज Yeah, टेकिंग इनके दोस विकेट्स। 2 bowlers लीडिंग विकेट टेकर्स में हैं, उसामा मीर एंड अली। Yep, and that's the numbers game. All right, दोस्तों, इसके साथ ही लेते हैं हम एक और वक्फा right here on the pavilion. Stay with us. We've got more on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखरानम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आक continued coverage of the HBL PSL 9 with me in the pavilion. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, Misbah Haq and the great Wasim Akram. बात करते हैं जरा, let me start with you Azhar. कल एक बड़ी सरप्राइजिंग डिसीजन थी कि पेशावर ज़ल्मीन जो कि 3 अपने मैचेस चेस कर पहली बैटिंग करके जीते हैं, उन्होंने कल चेस करने का फैसला कर लिया, उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को करा दी। यू थिंक दैट टुडे दे आर गोइंग टू रीथिंक दैट स्ट्रेटजी? देखिए पिंडी के अंदर चाहे पहले बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, पहले 4-5 ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी विकेट्स गिरेंगी तो आपको मसला हो सकता है। अगर विकेट्स नहीं गिरेंगी, चाहे पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, 200 इज़ आई थिंक पार स्कोर। अगर आप देखें ज़ल्मी के ऊपर से विकेट्स ना गिरती, इवन विद 25 for 5 they were able to score 167 और with that only आमिर जमाल थोड़ी देर खेल जाते थे, 180 190 तो हो ही गया था। So it doesn't, I don't think so it makes a massive difference कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो। और इसीलिए वहाँ के स्टैट लिटरली हाफ है। बिल्कुल ऐसे ही। So I don't think so, I think the decision was preservation of wickets is more key here than मेरे लिए आप मैं पर्सनली ये समझता हूँ, लुकिंग एट द ज़ल्मी स्ट्रेंथ, जो इनकी बैटिंग लाइनअप जिस किस्म के बैट्समैन है, दे नीड फ्रीडम जो कि उनको पहले खेलते हुए मिलती है। चेज में वो उनकी वो जिसको कहते हैं ना कि डिफरेंट गेम नहीं खेल सकते, वो वन वे है, विदाउट प्रेशर आके जिस तरह खेलते हैं। चेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए फिर बाबर और सैम, वो पहले भी होते हैं बट पहले फिर भी कहीं ना कहीं रिकवर कर जाते हैं। अंडर प्रेशर जब आप होते हैं और ये दोनों में से बाबर जैसे कल आउट हो गया रन आउट, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 50-60% मैच वहीं पे ओवर हो गया था कि भाई अब मुश्किल है इनके लिए। तो मुझे लगता है कि ज़ल्मी इन एनी केस एक तो ओवर थिंक नहीं करना और दूसरा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग, पहले लगा दो 200 प्लस एंड देन। उसमें भी सारे मैचों में वो टॉस जीत के बैटिंग नहीं की उन्होंने, Right, टॉस कराई गई थी। तो आई थिंक इस बैरियर द कंडीशन इज इक्वल ऑलमोस्ट, बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट दोनों में। तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट प्लेइंग इट द राइट वे। उसामा मीर को किस टाइम पे आज इंट्रोड्यूस करना चाहिए मुल्तान सुल्तान को? 3:05 थे। ओके, वो गुजर गया पाइन टाइम। At what stage? Because Babar Azam has been struggling against leg spinners in the PSL, and if he is not dismissed early, is it an idea? ये जरा आपके सामने बाबर आजम का इन एनी केस उसामा आ जाता है 7वें ओवर में, वो मोस्टली आ जाता है बॉलिंग करने, पावर प्ले में नहीं कर रहा वो, उसके बाद वो आ जाता है। और इट्स नॉट समथिंग कि आप कहें कि ये बुरा स्टार्ट है। स्टिल ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट 108 का सिर्फ 108 का है, लेकिन इधर उस पे एवरेज पर मिड में जब वो सामा बॉलिंग करता है फील्डिंग खुल भी हो जाती है, सो वो भी 7वें ओवर में खुल आपने जाएगी ज़हन में रखना है कि फील्डर बाहर होते हैं, सो वो बैट्समैन चांस कम लेते हैं, तो इसीलिए स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है ये बैटर्स का। पीएसएल के अंदर भी बाबर का हम रिकॉर्ड देख सकते हैं, बाबर आजम का रिकॉर्ड पेस के अगेंस्ट 2 दफा इट्स बेसिकली 50-50, बट हिज एवरेज स्ट्राइक रेट इज मच बेटर अगेंस्ट पेस देन इट इज अगेंस्ट He loves pace. No, I mean he's equally good player against spin, but he enjoys pace a lot more. He's got timing and everything. Yeah, just fantastic. ये स्टैट इसलिए भी आपको नज़र आता है कि मोस्टली अगर टीमें देखेंगे तो उनमें 3 या 4 सीमर खेल रहे होते हैं,
बीइंग एन ओपनर आप एक तो बहुत ज़्यादा आप नया बॉल खेलते हैं, ऊपर से वो भी फास्ट बॉलर्स होते हैं, इन बिटवीन भी आप ज़्यादा बॉलिंग जो है वो फास्ट बॉलर, स्पिनर कितने ओवर करता है मेनली, अब मैक्सिमम करेगा तो 8 ओवर कर लेगा, उसमें भी आप कितनी बॉलिंग खेलेंगे, बट फास्ट बॉलर्स 12 या 14 ओवर कर रहे हैं ओवरऑल अगर देखें तो ये उस वजह से भी नज़र आता है कि एवरेज ज़्यादा, और इज़ अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट पेस, सबको पता है इन पिचेस पे। Alright, let's look at मुल्तान सुल्तान्स now overall. उनके जो स्टार बैटर है उस्मान खान, जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की है, अभी सेंचुरी भी गाड़ी है पीछे भी, एंड यू नो इट्स गॉट अ 90 स्कोर, अनदर सेंचुरी, जस्ट आउटस्टैंडिंग। वो पर्सनल रीजंस की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात वापस फ्लाई कर गए, ही वोंट बी अवेलेबल फॉर टुडेज गेम। Really? Yeah, he's left for the UAE and is back, expected back on the 10th of March. तो तब तक जो है पेशावर Multan will have to fill in that role. What does that mean? Does David Malan come back? Malan is, I think, Yeah. probably डेविड fit मलान again. है, चार्ल्स ने इनको ज्वाइन किया था 2-3 दिन पहले, हमने पढ़ा है। जॉनसन चार्ल्स, जॉनसन चार्ल्स जो वेस्ट इंडीज़ वाले हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, Yeah. तो दे कैन हैव एनीवन, लाइक यस ऑब्वियसली इन फॉर्म थे उस्मान, उनको Yeah. मिस करेंगे, लगातार 2 बड़ी शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन मलान इज़ इक्वली गुड, लाइक ही प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स इन द मैच ही प्लेड लास्ट टाइम। उसके बाद उनकी थोड़ी सी पता लगा इंजरी का इशू आया, लेकिन अगर वो रिकवर कर गए और वो वापस आते हैं तो आई थिंक दे वोंट माइंड हिम टू हैव हिम स्ट्रेट अवे। Usman Khan is a special kind of player, isn't he, Wasim? Just, Yeah, he is, I mean- you know, and he shows, very different. And to come out of the United Arab Emirates, it just makes that whole package very, very interesting. या और उसका जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर्स हैं PL में, PSL में इन द हिस्ट्री, ही इज़ एट नंबर 5। Yeah. सिर्फ 13 मैच खेले और स्ट्राइक रेट है इनका 162 का, जो कि टॉप 5 में आता है, और बड़ी अच्छी शॉटें मारी हैं, स्पिनर्स को भी इक्वली गुड, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं और बड़ी सेफ शॉटें मारते हैं। मैंने इनको कोई अंधाधुंध मारते नहीं देखा अभी तक, जो भी शॉटें से फिनेस के साथ मारते हैं, बड़ी हिट भी मारते हैं नो डाउट, और ये शॉट जो थी आई थिंक बेस्ट थी इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर। आई लाइक हिम। लिमिटेशन नहीं है कोई इनकी, क्योंकि स्पिन को भी इक्वली अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को भी खेलते हैं, टॉप ऑर्डर में खिला लें, मिडिल ऑर्डर में खिला लें, तो एक कंप्लीट पैकेज है वो, मतलब कि हर शॉट है इनके पास, और सबसे ज़्यादा कि कूल हेड है, के राइट ऑप्शंस चूज़ करते हैं, स्ट्राइक रोटेट भी कर लेते हैं, सो लॉट टू बीइंग पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव चीज़ें हैं इनकी बैटिंग में, देखने का मज़ा आता है। और अगेन अगर आप बाकी ओवरसीज़ के नाम देखें, उनका नाम इतना बड़ा नज़र नहीं आता, फिर भी ओवर शेडो नहीं होते, आके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और उस दलेरी से खेलते हैं। आई थिंक फ़र्क तो पड़ेगा, एक बंदे ने 90 कुछ किया फिर 100 कर दिया अगले मैच में, वो इम्पैक्ट अभी तक उतना इम्पैक्ट शायद और प्लेयर नहीं डाल सके, तो फ़र्क तो पड़ेगा डेफिनेटली। मलान इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन और वो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा मुल्तान को। इस पिच पे मलान सूट भी करता है, क्योंकि उसको अगर स्पेशली अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है तो ये ट्रू पिच हो जाता है, और वो ही लाइक्स बॉल कमिंग ऑन टू द बैट। चलिए पिच की बात करें तो जरा मेरा ख्याल है स्किप पिच रिपोर्ट देख लीजिए। Well, the pitch report is in, and again we have absolutely no clue what it was all about. Yes, Wasim, please tell us. You would know better. You had a better idea. नहीं, it looks like yesterday's pitch. Right. जैसे आमिर सोहेल ने कहा कि मे बी कुछ एरिया से बॉल पढ़ के टर्न भी करेगा हल्का ये सा। आगे सर फिर ऊपर से लाइट से नजर नहीं आता, यू कांट टेल, लुक्स फ्रॉम हियर। अगर यहाँ से देखो इस एंगल से ये ड्राई लग रहा है, 2 कलर लग रहा है, जो आपने दूसरे एंगल से देखा है वो नहीं लग रहा। सो सिमिलर पिच, नथिंग चेंज। देखो ना स्क्वायर पे ग्रास है साथ वाली पिच पे, और उधर भी इस पे भी होगा, बट उन्होंने गंजी कर दी है पिच। आई डोंट नो व्हाई। कीप बिट ऑफ ग्रास, देन रोल इन, फिर ऐसे बनाओ तो पिच अच्छी होगी। आमिर की एक बात ठीक थी कि जब सूरज नहीं लगता पिच को कवर रही है ना, तो वो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है वो रह जाता है, जब सूरज लगता है तो वो मॉइस्चर भी ड्राई होता है, वो जो हुआ नहीं, इसलिए देयर इज अ बिट ऑफ टर्न अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल। जो हमने वो पहले भी देखा था। सो आज देने कोई नंबर देने? श्योर, 7.5। 7.5। कल से बेहतर है आपका स्कोर मिसबा? वही 7। 8 बिकॉज मुझे अच्छी लगी है। पिंडी की पिचेस सो फार लुक्स बेटर देन ऑल अदर थ्री। पिच रिपोर्ट को नंबर देने होते हैं। पिच रिपोर्ट दे दो 7। 7 सुबह हो गई है यार पिचेस को भी तो दो ना यार। जागो आपको पिचेस अच्छी नहीं लगी? जागो हफीज नहीं जागो। पिचेस नहीं अच्छी लगी। आगे चल रही है। 7। कार नहीं बने। चलो जी 7 हो गया। राइट, वेल देयर यू हैव डेविड विली देयर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद ज्यादा बिजी हो गए। Yeah, leagues all over the world all year round. So yeah, I think people are, especially at his age, are retiring because they just want to focus on league cricket now. And that's अगर okay. कोई T20 प्रोडक्ट तो फिर वो जल्दी रिटायरमेंट आपको एक्सटेंड कर देती है आपका T20
career basically. You get to play more and more. But this is interesting कि international cricket से ज़्यादा busy हो गए हैं because जिस तरह आपने कहा वो इतनी ज़्यादा cricket हो रही है, T20 वाली लीग cricket हो रही है that it just देखा जाए तो बिग बैश थी, उसके बाद आपका आयल T20, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीकन लीग, साइमल्टेनियसली 3 लीग्स दैट डिड 3 फिनिशेस, PSL एंड PSL स्टार्टेड, ये खत्म होगी तो आपकी IPL शुरू हो जाएगी, वो खत्म होगी तो बाय द टाइम अगर इनकी मैं ये बॉलिंग हम दिखा रही इस पे अगर बात करें तो मैं बड़ा इंप्रेस हूँ कि विद नॉट वेरी एक्सप्रेस पेस राइट एरिया हिट करके कामयाबी हासिल की है। हाँ, पेस तो बिल्कुल ही नहीं है, 126 127 बस जस्ट स्विंग्स द बॉल और वही खिंची हुई राइट एरिया लेंथ पे मारता है। या मूवमेंट हल्की सी जो इनको मिलती है ना, वो क्वालिटी ये है इनकी कि इनको आपको शॉट मारना पड़ता है, पेस कम है ना तो आपको टाइमिंग वाला शॉट इतने आराम से मिलता नहीं है, तो जब जो थोड़ी सी मूवमेंट इनको मिलती है जब भी आप उसको ज़ोर से मारने जाते हैं वो इतना आसान नहीं है इनको मारना। और जो हम बात करते आ रहे हैं कि खुद से कोई बॉल देते नहीं है इतने आराम से, और जो कि नॉर्मली बॉलर्स से मिस्टेक हो रही है कि T20 में एक तो बैट्समैन आपके पीछे आना ही आना है उसने, लेकिन आप खुद से ऐसा बॉल ना करें कि उसको ईजी बाउंड्री मिल जाए, तो ये मेक श्योर करते हैं कि बैट्समैन चांस ले तो फिर ही उसको कोई रन्स मिले या बाउंड्री मिले। ये एक ऐसे बॉलर हैं जिनसे आमिर जमाल को सीखना चाहिए। बिल्कुल कि विद लिमिटेशंस हिटिंग द राइट एरिया ही इज मोर सक्सेसफुल। Well, there you have Amir Jamal there. Interesting interview. हाँ जी, फिर किसने चमकानी अपनी दुकान? चमकानी दुकान मेरी है ही नहीं। दुकान ही है। That was strange. That was a strange. देखिए मैं एक चीज़ तो समझ आ रही है कि देखिए नाउ डेज द क्रिकेट हैज़ बीन चेंज और हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ओरिएंटेड जो है लाइफस्टाइल अपनाए हुए हैं। अपनाए हुए। उसके ऊपर लोग आपको बुरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, वी डोंट केयर अबाउट इट, लाइक वी प्लेड द क्रिकेट इन द ग्राउंड। वसीम भाई हमसे पहले क्रिकेट खेले हैं और बहुत बेहतरीन क्रिकेट, हमसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली। आई डोंट थिंक सो कि यस मीडिया को क्रिटिसाइज़ करने की पूरी इजाज़त होती है और आपके पास क्या है कि आप परफॉर्म करते हैं ग्राउंड में, लेकिन कभी भी आप उनको मुखातिब नहीं करते। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टू अर्ली फॉर हिम ऑल्सो। आई वुड लाइक हिम टू जस्ट स्टे फोकस ऑन द गेम, कीप परफॉर्मिंग, फॉरगेट अबाउट अदर पार्ट्स, ये ट्रेंड्स और अल्टम पल्टम, दे नेवर टेक यू, दे शुड नॉट टेक यू एट दैट स्टेज जहाँ पे आप इनको मुखातिब हों। आपके ग्राउंड की परफॉर्मेंस खुद ब खुद मुखातिब। Yeah, it wasn't necessary to say this, especially for Jamal, young boy, just he's got a very recognized in promising world career cricket. ahead of him, And this is what it is in 21st century social media. Everybody is a expert and rightly so. They have their अपने opinion देने का उनको पूरा हक है। क्रिकेट से जालिम कोई गेम है नहीं, क्योंकि आप एक दिन हंसते हो और ज़्यादा दिन रोते हो। तो जो बोलने वाले हैं उनको तो मौका बहुत मिलना ही है। आपने हर मैच में तो परफॉर्मेंस। I found out in last week or so कि हमारे प्रोग्राम पे भी प्रोग्राम होते हैं। Really? Yeah, I saw Facebook पे आप करो देखो कुछ प्रोग्राम होते हैं। सारे प्रोग्राम थे प्रोग्राम। जो हम कुछ कह देते हैं या फीस ने या उसने तो उस पे एक प्रोग्राम हो जाता है। जो भी है, I'm fine with it. I love it. That means we're doing something right. जितना आमिर जमाल का कैरियर रहा है, आई थिंक तारीफ ज़्यादा सुनी है और अभी तो वो चीज़ें सुनी नहीं है इन्होंने जितनी फेस करनी पड़ेंगी भी आगे। सो आई थिंक एक छल्ली दिल की आवाज़ सुने, छिला हुआ दिल है, उसकी आवाज़ सुने जरा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सवाल था सना का वैलिड क्वेश्चन, जो हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमी के बारे में क्या सोचा कि कैसे उसको, तो वो अभी भी उन्होंने कोई उस पे जवाब नहीं दिया कि व्हाट आर द ऑप्शंस, कैसे मैंने बेचा। तो क्लैरिटी, मैं सिर्फ अभी 10 मैच खेला हूँ, something like that. His answer was कि मैं wicket taking He's not focused on that. He's not No, focused on that. T20 क्रिकेट में उसमें फोकस होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। You can't go 12 and over all your career. Otherwise बहुत सी दूसरी अच्छी options जो है वो आपसे You got pace, overtake you करेंगे। got red ball experience, you got runs as well in this format. Just get the length right, be more consistent. And I'm sure he will learn how to handle the media As well, I'm yeah. sure because this interview के बाद तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनकी गाइडेंस होनी चाहिए। गाइडेंस और इसके बाद बहुत सारे अनगाइडेड मिसाइल भी चलेंगे इनकी तरफ। We hope all the best. एक्स्ट्रा प्रेशर अपने आप पे डालना है। Actually मुझे ये ज़्यादा वो है कि he'll actually end up taking more pressure because of that. But we wish him all the best because he's a really great prospect for Pakistan. He's shown some really great grit and performance in Australia, and we've again seen him on and off giving us some good performances, and wish him all the best. With that, we're going to take a break right here on the pavilion. We'll see you on the other side.
वेलकम बैक टू द पवेलियन। आपसे कुछ लम्हा पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव शॉट्स आ रहे थे रावलपिंडी से। दोनों टीमें जो हैं वहाँ पर इस वक्त भरपूर तैयारी के साथ अपना मैच खेलने के लिए। मुल्तान सुल्तान्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट देयर बैटिंग एंड उस्मान का अवेलेबिलिटी ना होना, बट बड़ी ज़बरदस्त खुशदिल ने बॉलिंग कराई है पिछले मैच के अंदर। मिसबाह, डू यू थिंक ही इज़ बीन अंडर यूटिलाइज्ड इन T20 ओवरऑल जनरली? मेरे में इस दफ़ा थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है रिजवान ने उनको बॉलिंग कराना। शायद कुछ पिचेस ऐसी थी, फास्ट बॉलर्स को वहाँ पे हेल्प मिल रही थी, ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना पिछले PSL में एक लीडिंग विकेट टेकर थे उनके और हमेशा उनको पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे थे। अभी लेटली उन्होंने उनको बॉलिंग करानी शुरू की है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया उन्होंने 2 मैचों में जो बॉलिंग की है। हालांकि 2 बड़े अच्छे बैट्समैन खेल रहे थे जो कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं और शोएब मलिक को आउट किया यहाँ पे। गुड थिंग अबाउट हिम इज़ वही जो हफीज़ ने बात की है कि विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। थोड़ा सा अगर उनकी आर्म देखें वो साइड से आती है, एक नेचुरल एंगल क्रिएट करते हैं, रूम कम देते हैं, यहाँ से बॉल आके विकेटों में फिनिश करते हैं और कई दफ़ा यहाँ से भी उनका गेंद थोड़ा सा ग्रिप करता है, तो इसलिए बैट्समैन को डिफ़िकल्टी होती है। नेचुरल एंगल से अंदर आ रहा होता है बॉल और फिर हल्का सा ग्रिप होता है तो वो मुश्किल होती है आपके लिए। अब मलिक को भी जो आउट किया है उसी एंगल से बॉल, मलिक जहाँ पे जिस लाइन में खेला है गेंद अंदरली साइड पे लगी है बैट के, क्योंकि वो एंगल से अंदर आया बॉल। हमेशा ऐसा बॉलर मुश्किल होता है और आई थिंक ही इज़ बॉलिंग वेल अगेन एंड दैट्स गुड साइन फॉर मुल्तान। मेरे ख्याल में आपने बोला कि अंडर यूटिलाइज्ड, मुझे लगता है वेल यूटिलाइज्ड। अच्छा, इनकी जितनी एबिलिटी है उसको बड़ा अच्छा मुल्तान सुल्तान यूटिलाइज कर रहा है। और आई थिंक इसमें क्रेडिट दूंगा मैनेजमेंट को, कप्तान को, कि जहाँ पे वो देखते हैं कि खुशदिल 2 या 3 ओवर या इवन 4 ओवर भी कर सकते हैं, वो करवाते हैं। Nawaz can learn a lot from Khushdil, Wasim, in terms of bowling the lines, the way that he's gripping the ball and I mean, everything. Nawaz is an experienced player. पिछले 10 साल से PSL पाकिस्तान टीम के साथ है. He doesn't have to learn from him. He should know this by now. लेकिन वसीम भाई, नवाज के अलावा पूरे पाकिस्तान में आपको लेफ्ट आर्म स्पिन की ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मात तो छोड़ गए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के चले गए। नवाज के अलावा मुझे एक लेफ्ट आर्म स्पिन दिखा दें जिसने PSL में कहीं पे खेला हो या उसको मौका मिला हो, कोई भी नहीं। You're very rare, हाँ. You're very usually in the beginning of PSL 3-4 साल आते रहे. डोमेस्टिक के 2-3 परफॉर्मर है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। खालिद उस्मान है, आसिफ अफरीदी हैं, आई थिंक वेरी गुड बॉलर्स हैं दोनों। लेकिन बड़ा अच्छा ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लेफ्टी दोनों दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। अगर मैं पीछे जाऊँ तो मास सदाकत के बारे में मैंने सुना है कि ही इज़ ऑल्सो गुड, टीम के अंदर कहीं पे मौजूद है लेकिन अभी तक मैच नहीं मिला। अरफात मिनहास ने वो अंडर 19 के प्लेयर। लेकिन नवाज आप सोचें कि एक वाहिद प्लेयर है जो पिछले 15 साल 10 साल की क्रिकेट के अंदर हमने डेवलप किया है एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। जुल्फ़कार बाबर जब से गए हैं, ही इज़ द ओनली वन लेफ्ट आर्म स्पिनर। दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क ऑन द डोमेस्टिक ऑल्सो, कि हम अपने प्लेयर की मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। इसमें गलतियां कहीं ना कहीं दूसरों की भी होगी, प्लेयर्स की भी होंगी, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन के अलावा मुझे नाम बता दें ये 2 प्लेयरों का, आसिफ अफरीदी और उस्मान खालिद के अलावा, जो ये भी and they both are very experienced. Yes, but they're not in complete PSL. bowlers. They do जिन्होंने well in the season domestic खेला है। cricket. वही है जो पहले PSL खेला था इस्लाम। Gentlemen, I'm going to interfere right there because both the captains are walking out for the toss. Well, there you have it. The news is that Peshawar Zalmi have won the toss and elected to bat first, and 4 changes for Peshawar Zalmi. Misbah. बाबर, सैम, कैटमोर, हसीबुल्ला को वापस लाए हैं राइटली आई थिंक। रमन पावल हैं, आसिफ अली भी राइट चेंज आई थिंक, यही मिसिंग थी पिछले मैच में इनकी। नवीन उल हक वापस आए हैं और मेहरान मुमताज़ वापस आए हैं। लेग स्पिनर की जगह शायद उनको कोई इंजरी है, तो आई थिंक अच्छी टीम है। And for Multan Sultans, Hafiz. जी वेरी गुड यूनिट। मलान आए हैं क्योंकि उस्मान खान अवेलेबल नहीं है आज के मैच के लिए। आफ्ताब इमर्जिंग के जो बॉलर थे वो आए हैं और फैसल अकरम नहीं खेल रहे। आई थिंक कंडीशनली आई थिंक ही विल एड सम वैल्यू एज ए फास्ट बॉलिंग यूनिट। तो आई थिंक एज यूजुअल दे लुक लाइक अ वेरी गुड साइड। All right, so there you have it. 4 changes for Peshawar, 2 changes for Multan. All right, let's start off with the expert predictions. Azhar Ali. Tough one today. Yeah. I'll go with Zalmi. Zalmi. Right on. All right, Hafiz. MS.
MS. MS Multan Sultans. Multan Sultans. Multan Sultans. All right. Misbah? कट्ठे जोर लावांगे. चांस दे दिए. बनती पिशावर है लेकिन मुल्तान सुल्तान. Whoa, Multan Sultan. All right, and there you have it. Those are your expert predictions. All right, folks, with that, that's all for the pavilion before the game. We're going to be taking you live to the stadium for the action. Thank you, Azhar. Thank you, Fiz. Thank you, Misbah. And thank you, Waseem. We will see you on the other side of the game.